Good morning, everyone. I, Dr. Shoumi Chatterjee, welcome everyone to this session today. Our special speaker, we have with us Dr. Anjum Parvez. Sir, welcome to you. Welcome to our little meetup that we try to do for legal awareness through our Vidhi Varta medium. We are very privileged to have you here with us, sir. Thank you, ma'am. I'm also feel privileged. Sir, I'll just give a small introduction. Dr. Anjum Parvez. Yes, Yeah, sure, sir. Dr. Anjum Parvez is a very well-known face and name in the legal fraternity. He has 16 years of teaching and research experience, and even more than that, he has been actively involved in subjects like human rights and criminology, and he has attained qualifications such as BSc, MA in English, MA in Police Studies, LLM in Human Rights, UGC NET in Law, in Human Rights, in Criminology. He has a PhD in Law. He is a LLM Gold Medalist from Banaras University, and he has several research papers of national and international stature to his credit. He has numerous conferences, and he has participated and contributed to a lot of international research forums. We are extremely privileged to have him with us today. Sir, I welcome you, and now I hand over to you, sir. so now you have given me a very daunting task of defining the rap laws of in favor of the women and against the men, and in relation with the penology, criminology, and the victimology. So, see, whenever there are the three angles of studying the penal laws or the rap laws. One in relation with the criminology, another is in relation with the penology, and the third one in relation with the victimology. So, first of all, start why we need because whenever you talk about the criminology, the question will come. It is a kind of the criminal jurisprudence. In other words, that is the criminal jurisprudence. Here, the question would arise: why we need the criminal law? Why we need the rap law for the women? And now, when we need the rap law, how we need the rap law, and where we need the rap law? Right? So, to begin with, first of all, we are the human being. And in any part of the world, the legal system has been prevailing in any country of the world. That has always been leading with the human beings. They are not for because you know that a person who can follow the law, a person who can make the law is the human being. Earlier they were called the man, now we call the human being. And I would like to, with your kind permission, I would like to keep it both in Hindi and English because it is better to have in both the language, right? Absolutely. So, thank you, ma'am. Thank you. Because I know that there are many audience who are not very much comfortable with the English, so I would like to mix the language. तो एक बात समझने वाली है यहाँ पे कि जब भी हमें कोई लॉ चाहिए होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनी वल्नरेबल सेक्शन, वो सिर्फ इंसानों पे अप्लाई होता है, और किसी भी लीगल सिस्टम में सिर्फ इंसान ही उसका सब्जेक्ट होता है और इंसान ही उसका ऑब्जेक्ट होता है. सो women, as we say, and many believe that they need the special protection because ऐसा माना जाता है कि women are comparatively weaker to the men, they are not as able, ऐसा माना जाता है. It does not mean कि बात सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जबकि, ठीक है ना. So एक बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी. Physically and medically, men build up is different and women build up is different, and there are biological difference. That is from the science point of view, right? As far as capacities are concerned, it does not mean, science does not say that no, women are lesser, are weaker, and men is much more powerful. No, it's not the case. The case is only this: biologically, both are with the different abilities,
both are same and both have the same mental capacity. Even the physical capacity can be same, right? Now, where the problem started? The problem started from the inception of the civilization. When the civilization began, what happened that because of some reasons, some climatic reasons, some biological reasons, some social reasons, men become dominant, and you say women become lesser dominant or no dominance. So here, what has happened that all the system, all the political system, all the social system came into the hand of the men. And women that time were deprived from that privilege of getting the participation in the political process, as well as participation in the social process, as well as the participation in the economic process. तो यहाँ पे ये हुआ है कि पुराने जमाने में जब इंसान जब आया, सिविलाइजेशन बना, तो हालात ये बन गए कि किसी वजह से कुछ रीजंस रहे होंगे वहां पे, बिकॉज क्लाइमेटिक रीजंस, कुछ एनवायरमेंटल रीजंस, कुछ दूसरे रीजंस, जिनकी वजह से मैन जो है वहां पे हावी हो गया और मेल डोमिनेशन आ गया. व्हाट वी कॉल देम द पैट्रियार्की, राइट? और उसका रिजल्ट ये निकला, द विमेन डिड नॉट गेट द प्लेस विच दे डिजर्व. ठीक है. अब होता यह है, आपने देखा होगा इन द ह्यूमन हिस्ट्री, एनी पर्सन और एनी क्लास ऑफ द पर्सन और एनी जेंडर ऑफ द पर्सन हु बिकम डोमिनेंट, फिर वो अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेता है, फिर वो चलना शुरू हो जाता है. They always try to maintain their dominance and they always try to subjugate the other gender. This has happened. यही हुआ है पूरी हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर. पैट्रियार्कल सिस्टम डेवलप हो गया और विमेन जो है मैट्रियार्कल सिस्टम जो है डेवलप नहीं हो पाया. ऑल्दो दैट मैट्रियार्कल सिस्टम डिजर्व द सेम प्लेस इन द वर्ल्ड, लेकिन वो हो नहीं पाया. और अब फिर यही होने लग जाता है कि once the one gender become powerful or one category become powerful, they establish the dominance. तो फिर वो डोमिनेंस चलता रहता है, और जो डिप्राइव्ड जेंडर होता है या डिप्राइव्ड क्लास होती है, फिर वो वीकर और वीकर होती जाती है. इट इज अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस, और फिर यही होता आता है. और यही हुआ दैट अल्टीमेटली it has been very much established that male become powerful even biologically later on because of the biological development, and comparing to the men, the women, you say, become lesser powerful, or you say no power, or you say become subordinate to the men. This has happened. और फिर अगर आप एक बार मेंटली सरेंडर कर रहे हैं कि हाँ भाई आदमी ही सब कुछ है, तो उसके बाद में तो फिर क्या बचा रह जाता है, आप समझ सकते हैं. तो यही हुआ कि जो है सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जिनके ऊपर रिसर्च चल भी रही है, हो भी चुकी है थोड़ी बहुत, कि पैट्रियार्कल सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया था. अब होने क्या लगा यहाँ पे, with the passing of the time, when the civilization got very much developed in the ancient time, and transforming from the ancient time to the medieval time, एक सोच बन गई कि women are not that much capable as compared to the man, as the man is capable. और अब क्या होने लगा कि men start keeping the women under the, कहते ना, पर्दा सिस्टम, उसमें रखने लगा, घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत जाओ. That kind of the philosophy got developed. उस तरह की philosophy जो है वहां पे डेवलप होने शुरू हो गई, और फिर ये ट्रेंड चलने लगा. एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट वाज दिस कि एक तरह से एक जहनियत बन गई यहाँ पे कि विमेन जो है वो घर के है और मैन जो है वो बाहर के काम के लिए है. और तो मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है, जो इसका रूट है ना, जो प्रॉब्लम का रूट है वो यहाँ पे आता है, राइट? दैट इज द थिंग. तो इसका जो सोशोलॉजिकल रीजन है वो ये है. इकोनॉमिक रीजन भी है. When the male become dominant, they start earning, they bringing the food to the house, they bring the other commodities to the house. Women were not allowed to participate in that. तो हुआ क्या वहां पे, इकोनॉमिक कहते हैं ना, इकोनॉमिक डोमिनेंस या इकोनॉमिक एक तरह से कहा जाए सॉवरेनिटी जैसे बोल ली जाए, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, that again come into the head of the man in comparison to the women. आप खुद हिस्ट्री देखिए, how many kings are there, and in comparison to the king, how many queens are there who ruled. आप इंडिया में देख लीजिए, हम लोग किनका नाम लेते हैं, 3-4 लोगों का नाम लेते हैं. झांसी की रानी का, रजिया सुल्ताना का, एक और कोई लेडी और मिल जाएगी, उसके कंपैरिजन में कितने नाम लेते हैं, अकबर, जहांगीर, जो है शहनशाह, शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान. बट द विमेन आर एब्सेंट. उसका रीजन यही रहा जो आपको मैं बता रहा हूँ कि विद द पासिंग ऑफ द टाइम मेल इतना डोमिनेंट हो गया कि बस सारा पॉलिटिकल सिस्टम भी उनके हाथ में आ गया, इकोनॉमिक सिस्टम भी उनके हाथ में आ गया, सोशल सिस्टम भी उनके हाथ में आ गया. तो मेन डिफरेंस यहां पे आया. तो
इकोनॉमिकली भी women deprived हो गई, and they now at that time become entirely dependent upon the man. ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया. सेकेंडली, एक सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द ऑफेंस ऑफ द रैप हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द विमेन. ठीक है, ये रैप जो वर्ड है ये आपका आ रहा है आपके लैटिन वर्ड से निकला हुआ है. स्क्रैप बोलते थे पहले, उससे निकला हुआ है ये. और वहां मतलब होता है इसका रैप का मतलब अ फोर्सफुल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विमेन बाय अ मैन. That is the meaning of the term rap. From there, it has come into the English. Now it is been called what we call the rap. So, you know that by the human nature, we are, as you know that there are the heterogeneous gender. One is a male and another is a female. And how often the law and the society become so much advanced now, they are speaking about the third gender. But we will confine ourselves only to the two gender, that is the male and female, right? So now you know that the world has been running because of the union of the male and female. When they make a couple, then they give the birth to the baby. You know that, understand? So if you will study the anthropology, the activity what we call the sexual intercourse is an activity which also give the pleasure to, especially to the men, and to some extent to the women also. But not always to the women, but many times to the men. That is also the medically proven fact that whenever a person indulges into the activity, what we call the sexual activity, men always get the pleasure because he is a dominant partner, and women become a subordinate partner or subjugated partner. And those people who belong to the criminology, they will agree with my view that in that act, the act of the aggression would be there, because that kind of the activity is very aggressive activity, and obviously the women is a passive element there. So this way, this tendency has also developed a thing that women is for the pleasure, for the men. She's a means. She has to work as a means for providing the pleasure to the man, because he get the pleasure, and that's the thing. So this has come this way. Now, what happened? As I just mentioned to you in my word that in the social sciences, हम ये मानते हैं कि मैन इसलिए ज्यादा आगे निकल गया क्योंकि पेट्रियार्कल सिस्टम डेवलप हो गया. अब वो क्या समझने लग गया है कि विमेन जो है एक उसके लिए कमोडिटी है. तो अर्लियर द रिलेशनशिप वाज कन्फाइंड ओनली टू द मैरिड कपल, बट एक बायोलॉजिकल रीजन भी होता है और कभी कभी आपके दूसरे रीजन, सोशल रीजन भी होते हैं. Man has now started subjugating the women by committing forceful intercourse upon the women, what we call the rape. In order to establish the, you say, there is a word narcissism. एक शब्द है ना narcissism, या मेल शोविनिज्म. अभी शौर्यता दिखाने के लिए, अपने को वो दिखाने के लिए कि मैं कितना दमदार हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो. They start using the women as a tool or as a mean of expressing their dominance. और फिर क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा होने के बाद में क्या होने लगा, that you know that हमारा जब सोसाइटी है ना, तो क्राइम होगा, क्राइम कभी रुकेगा नहीं, ये आप मान के चलें, because we are the human being. Some conducts of our are right and some conducts of our wrong. So there are many conducts who are wrong, what we call the crime. In criminal law, they are defined as separately, like the murder, like the culpable homicide, like the extortion, and of course the rape, right? तो ये तो होता ही होता है. तो अब क्या होने लगा यहाँ पे, मान लो दो राजाओं में लड़ाई हो गई, तो एक विनर होगा, दूसरा वाला लूजर होगा. अब जो विनर है वो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कर रहा है, वो जो हैगा जो डिफीटेड किंग है उसके यहाँ की जो लेडीज है उनको विक्टिमाइज कर रहा है, उनको जो है निशाना बना रहा है. दे आर कमिटिंग द फोर्सफुल एक्ट अपॉन देम, व्हाट वी कॉल द रैप, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस, है ना, ये डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए. तो ऐसा यहाँ पे होने लगा. एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं कि प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला वो होता है जो पावरफुल होता है, जिसमें दम होती है, जिसमें मसल पावर होती है, जिसमें सोशल पावर भी जिसके पास में हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है. द लूजर विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट. और यहां पर एक ये सिस्टम नया इस तरह से जब होने लगा, तो वॉर के अंदर सामने वाली जो डिफीटेड जो लीडर्स थे उनकी लेडीज को इसमें विक्टिम बनाया जाने लगा. एंड दिस वे द थिंग हैज बीन इमर्ज्ड, what we call now a very meanness in the form of the rape.
जो है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे। तो अब हर कोई आदमी ये बोल आप में से मेरे ख्याल से सारे लोग मुझसे ये बात एग्री करेंगे कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट व्हेन यू बिकम पावरफुल then commit the sexual offense upon the lady in order to get the dominance over her and over her family and over her community. This is not a very good thing. ठीक है, तो that's why we need the rape law. ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि in order to restrain the man or in order to restrain the you say the person with the you say with a bad intention, in order to restrain them we need the law, we need the agency of the law so that we can control the conduct of the man in order to save the honor of the women. इसलिए हमें इसका जो है लॉ चाहिए, इसलिए हमें जो है इसका ये चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग 3 एंगल से इसको देख सकते हैं। एक है रैप अगेंस्ट द वुमेन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सेकंड है रैप अगेंस्ट द वुमेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेनोलॉजी, एंड फाइनल वन इज द रैप अगेंस्ट द वुमेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द विक्टिमोलॉजी। एक तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। नाउ इंडिया की अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, इन इंडिया एट द टाइम इन द एशियन टाइम आल्सो दिस काइंड ऑफ द क्राइम्स वर देयर। एज आई सेड कि ह्यूमन सोसाइटी इज देयर, चाहे वो कितनी अच्छी सोसाइटी क्यों नहीं हो, चाहे वो रामायण महाभारत का काल क्यों नहीं हो, वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे भी रैप के इंस्टेंसेस वहां मिल जाते हैं, ठीक है। और वहां अगर आप उनको स्टडी करें, आप रोमन सिविलाइजेशन को देखें, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखें, आप जो है चाइनीज सिविलाइजेशन को देखें, किसी को भी देखें, रैप के इंस्टेंसेस मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी ऐसी डेवलप हो गई कि मेल डोमिनेंट हो गया, पैट्रियार्कल सिस्टम बन गया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये माना जाने लगा with the passing of the time, with the advancement of the science, with the advancement of the sociology, and with the advancement of the you say contribution of the women in the family, कि भैया ये सही नहीं है, ये चीज गलत है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, and one should not allow the victimization of the women in the hand of the man. इसलिए हमें रैप लॉ की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें रैप के लॉ बनाने पड़े। लॉ बनाना एक बात है, लॉ को रैप को कंट्रोल करना दूसरी बात है। एक बात क्लियर रखिएगा आपने, है ना। रैप के रीजंस अलग है, वो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, और रैप के को कंट्रोल करने के लिए आप लॉ बनाते हैं, व्हाट वी नीड वो एक दूसरी बात है, और रैप कंट्रोल हो जाता है वो तीसरी बात है। दीज आर द 3 डिफरेंट थिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि लॉ बना दिया जाए तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ टेररिज्म बहुत है तो इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट लॉ बनने से टेररिज्म खत्म हो गया होता तो फिर अभी ये कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ जो लॉ अब बन गए रैप के बारे में, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर इनको इम्प्लीमेंट इनके बन जाने से अगर कोई सॉल्यूशन आ चुका होता तो आज मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। 2024 मेरे ख्याल से 13 अप्रैल का रिपोर्ट में देख रहा था आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का, और वो रिपोर्ट बता रही है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो जिसकी रिपोर्ट आती है, जो आपके हर 2 साल में रिपोर्ट अपनी करता है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, इसकी वेबसाइट है, वहां से 3 वॉल्यूम में भी मिल जाएगी आपको। वहां वो बता रहे हैं कि इन इंडिया 2023-2024 में जो है जो केसेस आए वायलेंस अगेंस्ट द विमेन, जिनमें रैप भी शामिल है, पहले आते थे पर लाख, यानी 1 लाख की पॉपुलेशन में आती थी तकरीबन 50%, 60, अब वो आ रहे हैं 67%, ऑलमोस्ट 66 पॉइंट सम डेसिमल में आ जाएगा वो। इतने परसेंट केसेस वायलेंस के विमेन के आ रहे हैं जो पहले नहीं आया करते थे। और ये तब की हालत है जब मैं आपको आज लेक्चर दे रहा हूं, यानी 2023, 2024, 24-25 की रिपोर्ट बाद में आएगी। जबकि 2020 में ये ट्रेंड बहुत नीचे था, इट वाज अराउंड 45 और 50 समथिंग लाइक दैट, और अब ये एकदम से बढ़ गया है जाकर के इंडिया के अंदर, और ये आ रहा है 66 पॉइंट सम 0.1% और समथिंग लाइक दैट। ये आप 67 बोल सकते हैं ब्रॉडली करके, विच इज वेरी। तो अगर ये ट्रेंड इंडिया में चल रहा है तो इंडिया के रैप लॉज तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट हिस्ट्री। As earlier there was a law what we call the Indian Penal Code 1860, right? Under section 375 of the Indian Penal Code, the rap was defined, and rap was defined means it was a kind of the thing which is committing the sexual intercourse against a woman, against her will, against her consent, or by putting her under intoxication or making her incapable of mind,
with the intention of committing the causing the sexual intercourse against her, है ना, by coercion or you say like that, है ना, ऐसा जो है इस तरह की डेफिनेशन जो दी गई थी. बट लेटर ऑन व्हाट हैज हैपेंड, हमारे यहाँ पे 2012 में एक केस आया आपका, जो जैसे आप बोलते हो निर्भया इंसिडेंट. निर्भया, उस केस का नाम है मुकेश वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली. ये 2019 में डिसाइड हुआ है और जितने लोग थे उन सबको जो है डेथ सेंटेंस दिया गया था. इसके अंदर एक ने सुसाइड कर लिया था, बाकी जो 3 लोग थे या 2 लोग जो भी थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया. और एक जिसमें कि जो मेन कल्प्रिट था, ही वाज अ माइनर. और माइनर था, he was of the 16 year, who you know that if you know the fact of that case, Mukesh versus State of City of Delhi, there was a paramedic who was traveling from the Noida toward the Delhi. By inserting an iron rod in her private part, he just rotated it, and that way caused the severe damage to the intestines, in the you say the uterus, and all the internal organ of that lady, and that lady was brutally later on killed. I mean, she died. She succumbed to the injuries after 12-13 days. And that incident has provoked India so much कि डिमांड आने लगा कि भैया ये तो कुछ रैप तो बहुत ही खराब चीज है, इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट लॉ हमारे यहाँ पे होना चाहिए. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, जस्टिस JS वर्मा, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस JS वर्मा कमेटी बना दी कि आप बताइए कि व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ द लॉ, हम लॉ को कैसे इंप्रूव करें सो दैट द हीनियस इंसिडेंट लाइक दिस निर्भया इंसिडेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट ना हो, हम क्या करें. दैट कमिटी हैज गिवन द रिपोर्ट, JS वर्मा कमेटी, इसको बोलते हैं JS वर्मा कमेटी, जस्टिस जगदीश शरण वर्मा कमेटी. रिपोर्ट इसने दिया अपना 2013 में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि जो रैप है, एक तो उसका पनिशमेंट कम है, उसको बढ़ा दिया जाए, और सेकंड रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि जो एज है लाइबिलिटी की इन द मैटर ऑफ द रैप, उसको रिड्यूस कर दिया जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों की दोनों बातें मानी और पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस किया कि आपके IPC में चेंज करा जाए, और चेंज करके रैप लॉज को थोड़ा, ये जो रैप से रिलेटेड प्रोविजंस है लाइक द सेक्शन 375, 376, 376 A B C D जो आपके दे रखे हैं, उन्हें और स्ट्रिक्ट करा जाए. और तो पहले तो उन्होंने यही करा कि सेक्शन 376 में अमेंडमेंट करके, और पहले जो पनिशमेंट होता था 7 ईयर तक का, उसे बढ़ा दिया मिनिमम 10 ईयर्स के लिए, और मैक्सिमम जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया. गैंग रैप के लिए उन्होंने डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस उन्होंने जो है इसमें प्रिस्क्राइब कर दिया. अब प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे यहाँ लाइबिलिटी जो बनती है, व्हाट द लाइबिलिटी फॉर द रैप, वो बनती आ रही थी अ पर्सन हु इज 18 या मोर देन 18 ईयर ऑफ द एज, दैट पर्सन वुड बी लाइबल दैट टाइम फॉर द ऑफेंस ऑफ द रैप. अगर इससे नीचे वाला करेगा तो वो लाइबल नहीं होता था, ही वाज नॉट लाइबल, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉ कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 वाज देयर. और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बोलता था कि अगर कोई बताता था, वो साफ साफ बताता था कि 18 ईयर से कम का एज का जो बंदा है वो कहलाएगा माइनर. और वो माइनर अगर ये काम कर रहा है तो वो लाइबल नहीं है, ही इज नॉट लाइबल, ही इज ऑल्दो ही हैज कमिटेड द सेम ऑफेंस, येट ही शैल नॉट बी लाइबल. और उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको तो करेक्टिव होम्स में, जो आपके रिफॉर्मेटिव होम्स में, उसमें भेज दिया जाएगा. 2-3 साल के बाद वो छूट के निकल जाएगा, अपने घर चला जाएगा वापस. निर्भया इंसिडेंट में यही हुआ, that the main culprit was a 16-year-old boy who has actually brutally committed that offense as well as committing the murder, as a way I just mentioned to you. तो वो बंदा था. पार्लियामेंट ने क्या करा, जो ओल्ड लॉ था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह पे वो नया वाला लॉ लेकर के आ गए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. और वहां पे उन्होंने प्रोविजन डाला कि नाउ इफ अ पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ द 16 to 18, whatever offense he is committing, if he know that what he has been doing, then he shall be as liable as an adult is liable. यानी अगर 16 साल से ऊपर का कोई लड़का जो है ये ऑफेंस कर रहा है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसका नेचर, उसके कॉन्सिक्वेंस उसको पता है, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगा जो 18 ईयर से ऊपर के आदमी को मिलता है, दैट दे हैव मेड. तो ये प्रोविजन यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए, और 2018 में और ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट बनाया गया, 20 ईयर का पनिशमेंट कर दिया गया. और अब तो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है अब आ गया है. अब ये रैप आपका डिफाइन हो रहा है सेक्शन 63 के अंदर. सेक्शन 63 में वही है
जो आपके सेक्शन 375 में होता था, और 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू, सॉरी 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू ये करा गया कि आप अर्लियर इट वाज व्हाट द यू सी द फिजिकल आई मीन the penile penetration was the need. Now what has happened by the amendment? A penetration into the private part of the women through the hand, through the foreign object, by the oral, like that, all are included under it. और बाकी डेफिनेशन वैसी की वैसी है, ठीक है ना। और पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है काफी ज्यादा। और अब क्या हो रहा है, अभी भी ये आ गया है कि आज जो कोई if any rape has been committed and offense has been proved, then the offender shall be punished with not less than 10 years of the imprisonment, but that may go to the life imprisonment. वही वाली बात आ रही है, if the rape is you say a gang rape, तो फिर life imprisonment है या death sentence। यही अगर कोई माइनर गर्ल है, if she is minor girl, तो इधर प्रोविजन ये है कि a person guilty of this offense shall be punished with not less than the punishment of 20 years, but may go up to the extent of the life imprisonment। और life imprisonment का मतलब यहाँ पे बता दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले 14 ईयर के बाद में बंदा निकल के आ जाता था। सेक्शन 433 ऑफ द सीआरपीसी जो आप देखें, अब नए वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन आ गया है। तो सेक्शन 433 सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो जो है जो ऑफेंस करने वाले ऑफेंडर्स हैं उनका पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 ईयर तक रखे। और आमतौर पर होता भी ऐसे ही था, 14 ईयर 15 ईयर में आदमी छूट करके घर से बाहर जेल से आ जाता था। अब लिख दिया गया है कि नहीं साहब, नाउ ही विल टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक वो जेल के अंदर रहेगा, यानी टिल द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ। तो और हाँ, अगर यही कितना एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है तो माइनर के अगेंस्ट है तो सीधा डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। दो तरह के पनिशमेंट है, और जो मर्डर के लिए होते थे वो पनिशमेंट अब यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो ये चीजें यहाँ पे लॉ तो हमारे यहाँ का ये बन गया है। तो एज फार एज पेनोलॉजी इज कंसर्न, जो आपका पीनल प्रोविजन की बात करता है, काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं आपसे एक इशू के बारे में भी बात करूंगा जो सामने आ रहा है इससे निकल के, जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहा है और थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। आई विल ऑल्सो टेल, लेकिन लॉ बिकम वेरी मच स्ट्रिंजेंट सिंस 2013। द लॉ बिकम स्ट्रिंजेंट, मोर स्ट्रिंजेंट, एंड नाउ इट बिकम यू से। तो ये सब तो हो गया है, लेकिन अभी भी हैरानी की बात यह है कि ऑफेंस ऑफ द रैप इज नॉट बीन अंडर द कंट्रोल। अभी भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। एक चीज और है इसके अंदर, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन रैप नहीं माना जाएगा, बिकॉज ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन यू नो दैट द मेडिकल पर्सन्स विल हैव टू रिजॉर्ट टू सम ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिजीज। उसको नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन अलग से दे दिया है सेक्शन 63 के अंदर ही। और अ हस्बैंड having the relation with the wife, I mean the sexual relation with the wife over the age of the 18 year of the over the 18 year of the age, वो भी रैप नहीं माना जाएगा। ये दो एक्सेप्शन जो है यहाँ पे दे दिए हैं। पहले आईपीसी में ये 15 ईयर होता था, अगर माइनर वाइफ है तो 15 ईयर से कम की है तो उसका कंसेंट है या नहीं है तब भी वो रैप माना जाता था या माना जा सकता था। अब ये कर दिया गया है कि 18 ईयर से कम की है, एंड इवन द हस्बैंड इज हैविंग द सेक्सुअल रिलेशन विद हर, that may amount to rape। एक बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है जी, एक तो ये वाली बात हो गई। तो भारतीय न्याय संहिता अंडर सेक्शन 63 ये इसका प्रोविजन कर रही है, एंड द पनिशमेंट आर गिवन अंडर सेक्शन 64। ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया कि इसको हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो पनिशमेंट तो काफी इंक्रीज हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब यह है कि इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ द रैप, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी उस आदमी की, वो हमेशा के लिए जो है बर्बाद हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर, यानी उसका रिहेबिलिटेशन का कोई चांस बनेगा नहीं। एक इश्यू इसमें से ये निकल के आता है। सेकंड इश्यू मैं थोड़ा सा अलग तरह से डिस्कस करूंगा। देखिए, एक है आपका भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आपका है पॉक्सो, द प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन एक्ट 2012। वहां पे भी इस तरह का प्रोविजन दे रखा है। वहां पर अगर आप देखें तो वहां पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और या सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 और सेक्शन 7 में दे रखी है, वहां दे रखा है वहां। और वहां पर जो है यू नो दैट पॉक्सो इज मोर स्ट्रिंजेंट लॉ देन द भारतीय न्याय संहिता। यहाँ तो जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज अ स्पेशल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन।
अब आपको एक बात माननी पड़ेगी कि इन इंडिया स्टिल, डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2007, चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती है, और कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है अभी भी। ये तो अलग बात है कि डेटा सामने नहीं आता, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन क्योंकि देखिए, पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने वो केसेस आते हैं जिनको रिपोर्ट किया जाए, और इंडिया में मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा केसेस वो आते होंगे जिनको रिपोर्ट ही नहीं करते। चाहे वो रैप से ले लीजिए, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए। मैं अगर इसको आप रिसर्च करने लग जाए और कोई ढंग से रिसर्च करे, सोशल रिसर्च करे, तो ये बात सब जानते हैं कि देयर आर मतलब 50% के आसपास ही केसेस रिपोर्ट होते हैं, अदरवाइज वो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो आप इसकी फिगर, जो मैं फिगर बताता हूँ उसको डबल मान लें आप एक तरह से करके, ठीक है ना। क्योंकि आज के टाइम में भी इंडिया का जो खासतौर पे रूरल सेक्टर है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर अभी भी ये है कि विमेन कंसिडर्ड देमसेल्फ सबऑर्डिनेट टू द मैन। तो वहां कुछ हुआ भी जाता है ना, कभी बताते नहीं है वो आके, कभी रिवील आउट ही नहीं करते कि उनके साथ क्या हो गया या क्या बुरा उनके साथ में हो गया है, कभी नहीं बताते वो आके। एंड दैट मैटर गॉन अनहर्ड, क्योंकि पुलिस क्या कर लेगी या कोर्ट क्या कर लेगा, वो अंतर्यामी थोड़ी है कोई कि उसे मालूम पड़ जाएगा इस घर में ये हुआ। वो चीज आती ही नहीं, निकलती ही नहीं आती वहां पे। तो अब इसको अगर मैं डोमेस्टिक लाइफ से जोड़ने की कोशिश करूं, तो आप देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है, या हस्बैंड जो है 18 ईयर से ऊपर का है, वाइफ जो है लेस देन 18 ईयर है, तो वो माइनर के अंदर आएगी। आप अगर पॉक्सो में देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ है अ चाइल्ड बिलो द 18 ईयर ऑफ द एज इज माइनर, और माइनर के बारे में यही माना जाता है कि 18 ईयर से कम वाला जो है वो माइनर जो है होता है। तो अगर उसने मैरिज कर ली है, अब सेक्शन 64 का जो एन है, जो क्लॉज एन है, अगर वहां पे देखें तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है एनी रिलेटिव by the relation of the blood, by the relation of the adoption and by the relation of the marriage। अगर वो ये एक्ट करता है, वो ये इस तरह का रैप करता है, तो उसको जो है और ज्यादा सिवियर पनिशमेंट मिलेगा। 20 ईयर तो मिनिमम है ही है, साथ ही साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट साफ है, क्लियर बिल्कुल ही, कि वो जाएगा आपका लाइफ, आपका नेचुरल डेथ होने तक आपको जेल में बंद रहना पड़ेगा। एक जो है यहाँ पर ये चीज जो है इसमें डाली गई है। अब यहाँ पे एक इशू निकल के आ रहा है, देखिए, ऑल्दो सब लोग मानते हैं कि विमेन इज द विक्टिम, एक इशू जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, मैरिज होती है एक दूसरे को एंजॉय करने के लिए, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने के लिए। और अभी तक ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट चाइल्ड मैरिज को रोक नहीं पाया है अभी तक, आज के डेट तक। और क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं होता, सब पता होता है, पुलिस को पता होता है, सबको पता होता है, येट दे वर नॉट एबल टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज। तो अगर चाइल्ड मैरिज अगर आप हो जाने दे रहे हैं, तो मैरिज मीन्स टू गिव द बर्थ टू द बेबीज, टू हैव द फिजिकल रिलेशन, सो दैट देयर इज अ यूनियन, ऑफ दैट यूनियन द चाइल्ड विल कम आउट। ये तो होता है इसका मीनिंग। तो एक बड़ी अजीब बात पैदा हो जा रही है कि आप जो है ये सब आप कर रहे हैं, उसके बाद में जो है जब हस्बैंड वाइफ से रिलेशन बना रहा है, अगर उसने कंप्लेंट कर दी, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो डेट अमाउंट टू द रैप, वो जो है रैप माना जाएगा, डेट अमाउंट टू द रैप। हस्बैंड चाहे माइनर है चाहे मेजर है, डजंट मैटर, ही शैल बी यू से एन अक्यूज ऑफ द रैप। एक इशू तो ये निकल के आ रहा है, यानी इस इशू को रिजॉल्व नहीं करा गया है, क्योंकि सीधी बात है, मैरिज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैरिज। तो यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं मैरिटल रेप के बारे में। और मैरिटल रेप का मतलब होता है, वो चाहे माइनर वाइफ हो चाहे वो मेजर वाइफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमिटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट अ वाइफ, अगेंस्ट हर विश और अगेंस्ट हर विल। ये होता है, वो फिजिकल रिलेशन बनाना नहीं चाह रही है, लेकिन आप जो है हस्बैंड उसको कंपेल कर रहा है कि नहीं बनाना होगा, है ना, वो कंपेल कर रहा है उसको, तो वो आपका कहलाता है माइनर, बिकॉज शी इज नॉट कोई खिलौना थोड़ी है कि आपके एंजॉयमेंट के लिए या आपके इसके लिए आप जब चाहोगे जब उसको जो है यूज करोगे। तो दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट कि भाई नाउ द टाइम हैज कम कि भैया मैरिटल रेप को भी जो है इसको जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा जाए। और इस पे काफी सारा लॉ में जो है आज के टाइम कंट्रोवर्सी चल रहा है, सॉल्यूशन तो अभी तक आया नहीं है, पर कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चल रहा है। इन सम यूरोपियन कंट्रीज द मैरिटल रेप इज ऑल्सो, आई मीन मैरिटल forceful intercourse is also the offense, what we call the marital rape। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां से लर्न कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पे लाके अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। I also believe that wife is not for only for the pleasure, she is for the
यू से फॉर मेकिंग अ फैमिली के लिए है, वो कोई आपके मजे लेने के लिए नहीं है कि आप शादी कर लें और उसके बाद में जो है फिर जो खिलौने की तरह उसको यूज कर रहे हैं अपने अपने मन मर्जी के हिसाब से। ऐसा नहीं है। शी इज ऑल्सो हैव द पर्सनैलिटी, यू ऑल्सो हैव अ पर्सनैलिटी। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसी उसकी पर्सनैलिटी है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट हमें वहां पे करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि केस आया था आपका रेड फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आया था कि भैया मैरिटल रेप इज ऑल्सो। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग जजमेंट दिया। सम जजेस एक्सेप्टेड यस फोर्सफुली committing the rape upon, I mean committing the sexual intercourse upon the wife is a marital rape। कुछ जजेस ने कहा कि नहीं, फैमिली टूट जाएगी अगर ये मैरिटल रेप आ गया, क्योंकि वाइफ कंप्लेंट करेगी, क्रिमिनल केस चलेगा, हस्बैंड जेल जाएगा। अब जेल में जाने वाला हस्बैंड और वाइफ में अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे तो डाइवोर्स हो जाएगा। यानी आप अगर एक नए तरह का ऑफेंस लेकर के आ रहे हैं, व्हाट वी कॉल द मैरिटल रेप, तो वो नई प्रॉब्लम भी लेकर के आ रहा है, एक नई तरह की सोशल प्रॉब्लम भी लेकर के आ रहा है। अगर आप उसको यही रीजन है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लगातार ये कहता आ रहा है कि मैरिटल रेप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉर्मल, वी डोंट कंसीडर इट एज एन ऑफेंस। और ये जो है आपका जो है ये कहते हैं ना, आपकी जो नुप्शियल रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज की रिलेशनशिप है, उसका एक पार्ट है। तो ये ऑफेंस नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने का तरीका है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लगातार कहता आ रहा है और ज्यादातर हाईकोर्ट का ये व्यू है। तो एक बड़ी अब देखिए, पॉक्सो में अगर मैटर आता है ना, कभी पॉक्सो में हस्बैंड भी लायबल हो सकता है, हस्बैंड या गार्जियन भी लायबल हो सकता है। गार्जियन, हु इज द गार्जियन? अच्छा, गार्जियनशिप के बारे में मैं आपको और बता दूं, और इस रैप के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूंगा मैं। आप अगर देखें तो हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन 41C अगर आप देखें, हस्बैंड इज द गार्जियन ऑफ द वाइफ, हस्बैंड इज द गार्जियन ऑफ द वाइफ। और अगर आप एक और लॉ देखें, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, मेरे ख्याल से मैं सेक्शन भूल रहा हूं, शायद सेक्शन 24 18 है, वहां पे दे रखा है कि माइनर चाइल्ड मैरिज के अंदर माइनर हस्बैंड जो है अपनी माइनर वाइफ का गार्जियन है। ठीक है, यानी वो उसकी वाइफ है और वो उसका गार्जियन भी है। और हालांकि यही अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वाइफ का गार्जियन बना दिया है हस्बैंड को, लॉ ने, हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन है। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट करता है, जैसे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका हस्बैंड उनका गार्जियन होगा। ये कह रहा अजीब बात, सोचने वाली बात है, पर चलो इसके बारे में बात नहीं करते, कभी बाद में बात करेंगे किसी और लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे है तो ये अपने आप में थोड़े से जेंडर बायस लॉ तो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। कहते हैं जेंडर न्यूट्रल लॉ, तो व्हाट वी नीड द जेंडर न्यूट्रल लॉ, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉ है ही नहीं। यहाँ पे इवन इन द लॉ द डोमिनेंस टू द मेल हैज बीन गिवन। आप खुद देख सकते हैं, आपका मैंने अभी इस्लामिक लॉ में भी बात कर लीजिए, मुस्लिम लॉ है, शरीयत लॉ, वहां पे भी हस्बैंड इज द गार्जियन ऑफ द वाइफ, वाइफ इज द यू से फॉर द हाउस होल्ड अफेयर, मैन फॉर द आउटसाइड अफेयर, वही वाली फिलॉसफी फॉलो करी गई है। तो रैप जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इसका होने का एक मेन रीजन ये भी है कि बिकॉज इन सोसाइटी देयर इज नो जेंडर इक्वलिटी नहीं है, तो जेंडर इक्वलिटी की बात तो बहुत दूर की है ना। तो देयर इज नो जेंडर इक्वलिटी। अभी भी अगर आप देखो, यू स्टडी द लॉ ऑफ इंडिया, ज्यादातर लॉज को आप देखोगे, ओनली आर्टिकल 14 सेज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपका आर्टिकल 14 तो ये बोल रहा है, और आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, माने कि जेंडर। और आपके यहाँ पे ये लॉ बने हुए हैं जिनका नाम है अभी आपसे ले रहा था, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। हस्बैंड वाइफ का गार्जियन है, वाइफ नहीं है, हस्बैंड गार्जियन है। आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 41C, हस्बैंड नेचुरल गार्जियन है वाइफ का, उससे पहले पिता होता था, फादर होता था, मतलब मदर नहीं है, उसको बना रखा है। तो अगर ये एटीट्यूड रह रहा है, अगर ये एटीट्यूड रहेगा, तो फिर तो मेल डोमिनेंस बना रहेगा, वो तो अभी खत्म होने से रहा, वो तो कभी खत्म नहीं होगा किसी भी तरह से करके। अब अगर आप एक चीज को नोटिस करें, ऑल्दो वी स्पीक अ लॉट अबाउट द इक्वलिटी, हम इक्वलिटी की बहुत बातें करते हैं, बहुत से कहानियां सुनाते हैं और कहते भी हैं कि वी पीपल आर इक्वल एंड सो एंड सो एंड सो, लेकिन विमेन के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, इन सबके केसेस को अगर आप देखने लग जाए, यू विल फाइंड आउट वन थिंग, ये सब प्रोटेक्टिव इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। दे आर ओनली स्पीकिंग अबाउट द प्रोटेक्टिव इक्वलिटी। प्रोटेक्टिव इक्वलिटी का मतलब होता है वो ये मान के चल रहे हैं कि विमेन इज अ वीकर सब्जेक्ट,
यानी विमेन आदमी के कंपैरिजन में जो है कमजोर है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन देना है, इसलिए वी नीड द दैट्स व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन टू हर। और उसके हिसाब से वो लॉ बना रहे हैं, उसके हिसाब से वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है देते हैं, है ना। अब होना क्या चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे सब्सटेंटिव इक्वलिटी। सब्सटेंटिव इक्वलिटी में ये माना जाए कि विमेन अपनी जगह पे है, मैन अपनी जगह पे है, और अपने अपने दायरे में वो इक्वल है, ये माना जाए। वो अप्रोच हमारे यहाँ पे है ही नहीं। व्हाट द अप्रोच कि इन कंपैरिजन टू द मैन द विमेन इज वीकर, दैट्स व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन टू द विमेन। बस ये हमारे यहाँ बना लिया है। अगर इस सोच को आप आगे बढ़ाते हैं तो ये मेंटलिटी बनी रहेगी, ये हटेगी नहीं। और ये ऑफेंस ऑफेंस वैसे होते रहते हैं, लेकिन जो रिफॉर्मेशन आना चाहिए वो आएगा ही नहीं आने वाला इस तरह से करके। मैं एक सबसे जो लीडिंग केस है आपके रैप के ऊपर, वो है आपका तुकाराम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो पहले के जमाने में आया था एक टाइम पे। एंड अ लेडी वाज रैप्ड, allegedly रैप्ड इन द पुलिस स्टेशन, एंड व्हाट हैपेंड दैट नोबडी हैज सीन दैट इंसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि भैया किसी ने देखा तो है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये जो है तो पुलिस तो लोगों की रक्षा के लिए होती है, तो पुलिस स्टेशन में वो रैप करे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रूव नहीं हो रहा ऑफेंस, और उन्होंने जो है उन पुलिस वालों को दोषी माने नहीं गया था। अ काइंड ऑफ ब्लैक जजमेंट। हालांकि वही सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल रैप को रिकॉग्नाइज कर रही है आगे चल के, और वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया ये तो एविडेंस मिल नहीं रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज दिस कि हम जब तक कहते ना, अनलेस एंड अनटिल द गिल्ट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, है ना, जब तक कि रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड गिल्ट प्रूव ना हो जाए, किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता। ऐसा जनरल लॉ का कंसेप्शन है, जनरल लॉ का, जिनमें आपका भारतीय न्याय संहिता भी आता है, जिनमें आपकी इंडियन पिनल कोड भी आती थी। यहाँ पे होता क्या है, इफ द ऑफेंस ऑफ द रेप हैज बीन कमिटेड एंड अरेंज्ड बाय द वुमेन टू बी कमिटेड अगेंस्ट हर, जब वो एफआईआर कराती है या कोर्ट में जब जाती है, तो पुलिस या सॉरी कोर्ट बोलता है कि आप एविडेंस दीजिए कि आपके अगेंस्ट ये हुआ है। अगेन आई कोट द एनसीआरबी डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, आप हर साल का डेटा देख लीजिएगा। एवरेज जो निकल के आ रहा है, आउट ऑफ 100 केसेस ओनली 19 और 20 केसेस में तो पनिशमेंट मिल जाता है, बाकी 80 केसेस में जो है ऑफेंडर बच के निकल जाता है ना, राइट। ये एक हकीकत है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, आपने पनिशमेंट दे दिया, आपने ऑफेंस डिफाइन कर दिया, पर कोर्ट पनिशमेंट सिर्फ तभी देगा जब प्रूव हो जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है, दैट इज द रैप, एंड दैट शुड बी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दिस, द ऑफेंस ऑफ द रैप हैज ऑलवेज बीन कमिटेड इन सम सीक्रेट प्लेस और द सेक्लूडेड प्लेस। ऑफेंस, ये रैप जो होता है हमेशा वहां होता है जहां पे लोगों की नजरें नहीं जाती, तो वहां पे डायरेक्ट एविडेंस तो मिलना नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डायरेक्ट एविडेंस, है ना। एज आई डिड आई डू द रिसर्च अबाउट द फॉरेंसिक साइंस, जब मैं फॉरेंसिक साइंस में रिसर्च करता हूं, मैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से ही हूं और लॉ में मैं बाद में आया हूं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूं कि as the court needs the evidence that this offense has been committed, अब now वो evidence आएगा कहाँ से? और evidence can come from the biological evidence. Biological evidence का मतलब होता है when the two bodies come into the contact with each other, like the men and women, they exchange their biological material upon each other. For example, the pubic hair of the man will come, or the semen will go inside the private part of the women. If the timely medical checkup, medical examination be conducted, these evidence can be you say left out, and they shall be very crucial and vital evidence against the culprit. लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस है नहीं, वहां पे जाकर के पहले हुआ, बजाय इसके कि जाके रिपोर्ट करें पुलिस के अंदर, गए पानी डाला, नहा उन्हू लिए, और उसके बाद में पुलिस में जा रहे हैं करके, या जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं जो है, उसके बाद तो जो मेडिकल एविडेंस जो अवेलेबल हो सकता था वो तो खत्म हो गया, राइट। Whatever the clothes they were wearing at the time, even some biological materials like the saliva, like the hair, like some semen, maybe upon it also, उन्हें भी आपने धो लिया, वॉश कर डाला आपने उनको करके, तो जो मिलना था वो भी नहीं मिलता। अब बचा क्या रह जाता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे ज्यादातर केसेस में, क्या आ रहा है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अकेले अपने दम पे किसी को पनिशमेंट दिलवा नहीं सकते। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद द भारतीय न्याय संहिता और द इंडियन पिनल कोड, अर्लियर विद द इंडियन पिनल कोड, क्योंकि यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, द बर्डन ऑफ प्रूफ वो विक्टिम के ऊपर है। वो प्रूफ करेगी कि उसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, और
As you know that accused has the right to remain silent. वो आंसर में कुछ बोले तो बोले, विक्टिम को बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट ये केस प्रूव करना है और अक्यूज ने चुपचाप रह जाना है या बस उसको काउंटर कर देना है, वो बच कर निकल जाएगा। यही रीजन है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट हर साल हमें ये बताती है कि मुश्किल से 20% के आसपास ही कन्विक्शन हो रही है और 80% के आसपास के लोग जो है निकल के बच के निकल जा रहे हैं। अब जो 80% केसेस में जो लोग बच के निकल जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सबके सब इनोसेंट तो नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल रिक्वायरमेंट कि आपने प्रूव करना है, विक्टिम ने प्रूव करना है, बहुत से ऑफेंडर्स यहाँ पे निकल के चले जा रहे हैं। तो पेनोलॉजी में पनिशमेंट अच्छा मिलना चाहिए, वो तो आपने बना दिया, पर सिस्टम क्या होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, वो ऐसा अभी भी अंग्रेजों के जमाने के वाला है कि पनिशमेंट नहीं मिल पाता। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वह जो है आई मीन द लेडी जो वास्तव में विक्टिम है, शी बिकम अनेबल टू स्टैंड बिफोर द सोसाइटी, क्योंकि एक मजाक बन जाता है उसके बाद में। इसीलिए लॉ ने एक अच्छा प्रोविजन किया है कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करा जाता। Neither the court nor the police nor any other authority can disclose the name of the victim of the rape, ठीक है ना। और माइनर में, अगर माइनर में ऑफेंडर भी जो है माइनर है और तो उनका भी नाम एक्सपोज नहीं करा जाएगा, और अगर अडल्ट है तो उसका नाम जो है, अगर ऑफेंडर अडल्ट है तो उसका नाम जो है दिया जा सकता है। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है। हम लोगों का सजेशन यहाँ पे ये है कि जैसे आपने डाउरी डेथ, जैसे सेक्शन 498A था आपका इंडियन पिनल कोड में, क्रूल्टी अगेंस्ट द विमेन, और आपका जो आपका होता था डाउरी डेथ जो सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट में आता था, वहां पे एक टर्म यूज होती थी शैल प्रिज्यूम, है ना। दो वर्ड्स आती है ना एविडेंस के अंदर, एक आती है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। वहां पे उन्होंने उल्टा कर दिया था, जैसे पॉक्सो में भी उल्टा है कि विक्टिम को सिर्फ ब्लेम करना है कि सामने वाले बंदे ने जो है उसके अगेंस्ट ये ऑफेंस किया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर है कि वो ये प्रूव करेगा कि मैंने ऑफेंस नहीं करा है, और विक्टिम के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं आएगी कि वो ये प्रूव करता फिरे या करती फिरे कि उसके अगेंस्ट ये इस तरह का हीनस ऑफेंस कमिट हुआ है। आप देखते हैं कि पॉक्सो के केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है, मोर देन 60% केसेस में जो है कन्विक्शन हो जाती है पॉक्सो के केस के अंदर। लेकिन यही अगर आप भारतीय न्याय संहिता देखें या इंडियन पिनल कोड देखें, इनमें सिर्फ 20% 21% है, क्योंकि यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम के ऊपर है कि वो प्रूव करेंगे उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, और पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है, उसने ये काम नहीं करा है। तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम यहां पे ये निकल के आ रही है। एक कभी कभी मैं बच्चों को लेक्चर देते बोलता भी हूं, जब पार्लियामेंट ने इतना रिफॉर्म किया था, इतने बढ़ाई दिए थे जो है ऑफेंस 20 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहां तक के पनिशमेंट दे दिए थे, जो है नई नई चीजें आप लेकर के आ गए थे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी जो है पॉक्सो की लाइन के ऊपर या इस तरह के जो डाउरी डेथ वगैरह के जो केसेस होते हैं उनकी लाइन के ऊपर अक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया होता, तो शायद इन कंपैरिजन टू करंट सिचुएशन द सिचुएशन मे बी अ लिटिल बेटर। तो एक तो ये रिकमेंडेशन है हम लोगों की कि थोड़ा सा ये काम किया जाए। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे ये बोलने लग जाएंगे कि दीज लॉज आर ऑल्सो मिसयूज्ड, एंड दैट्स करेक्ट, ये लॉ मिसयूज भी होते हैं। अभी हाल ही में 20 सितंबर का जजमेंट है या 20 अक्टूबर का, प्रशांत वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाले केस में। अब आजकल क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द लिव इन रिलेशनशिप एंड मैन एंड वुमेन आर लिविंग टुगेदर विदाउट अंडरगोइंग द सेरेमनीज ऑफ द मैरिज एंड दे आर लिविंग एज द लिविंग पार्टनर। As far as the relationship is going on consensual, they are making the physical relation. लेकिन हो क्या रहा है, अगर किसी वजह से ये रिलेशनशिप टूट जाती है तो ये देखने में आ रहा है कि जो लड़का था या जो आदमी था उसके अगेंस्ट लेडी कंप्लेंट कर देती है कि भैया इसने तो जो है मेरे साथ में ये ऑफेंस किया है जिसके बारे में, दैट इज रैप, है ना। Earlier they were in relationship, whatever they did with the free consent, they did with the free will. अब रिलेशन खराब हो गई है, रिलेशन टूट गई है, लड़का लड़की को छोड़ के जा रहा है या किसी वजह से छूट जा रहा है मामला, या लड़की से छुटकारा चाहती है पर लड़का नहीं छोड़ रहा, तो उसके अगेंस्ट जो है रैप का मामला जो है थाने के अंदर यानी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है दर्ज करवा दिया जा रहा है। नाउ दिस ट्रेंड इज वेरी मच ऑन हाई। ये चीज नोटिस हो रही है यहाँ पे आज के टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट ने यही वाली बात बोली है अभी के जजमेंट में, प्रशांत वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले में, कि नाउ इट इज अ वेरी सीरियस ट्रेंड, एक बहुत खतरनाक ट्रेंड ये चल रहा है यहाँ कि नाउ द लॉज विच आर द टूल ऑफ द प्रोटेक्शन आर मिसयूज्ड बाय द विमेन, नॉट बाय ऑल द विमेन बट सम विमेन इन सम केसेस।
अगेंस्ट द मैन, जो इनके ऑब्जेक्टिव को ही डिफीट कर रहा है। एंड नाउ दैट इज अ वरीसम फैक्टर। ये एक चिंतनीय चीज है और इस पे चिंता करने की हमें जरूरत है। एक चीज यहाँ पे याद है। तो देखिए, मैंने जो आपसे अभी तक बात करी है उसके अंदर जो नो डाउट विमेन इज अ विक्टिम, और ऑफेंस ऑफ द रैप इज सच अ थिंग, इफ शी इज ट्रूली द विक्टिम देन दिस अफेक्ट हर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। ये दोनों हेल्थ को उसकी जो है खराब करता है। एंड द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, पीपल ऑफन ब्लेम द विमेन रादर देन द मैन। ये भी हमारे यहाँ एक है कि लेडीज को ज्यादा दोषी बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है, मेल अपने आप को डोमिनेंट समझता है, तो कुछ भी इल्जाम लगा दो और वो विक्टिम कौन होती है? वो होती है विमेन। विमेन होती है। आप इसको इस तरह से देखो ना, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हाउ द विमेन आर शोइंग सीन देयर। विमेन को कैसे दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के अंदर? दे आर मेकिंग द, इन ऑर्डर टू सेल अ प्रोडक्ट, शी हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज द सेक्स सिंबल इन ऑर्डर टू अल्योर द कस्टमर कि भैया ये मैगी है, ये फला है, वो फला वाला वो जो है टूथपेस्ट है, और ये अल्योर किया जा रहा है। मैन दिखाई नहीं देता, विमेन ज्यादा दिखाई देती है इन ऑर्डर टू अल्योर द कस्टमर। तो अ काइंड ऑफ द मीन्स, एक तरह की वो कहते हैं ना माध्यम बन गई है, उनको इस तरह से करके यूज किया जा रहा है यहाँ पे। एंड तो देखिए, शायद मेरे ख्याल से लॉ से कुछ नहीं होने वाला। लॉ अगर कुछ करता होता, एज आई बिगिन माई लेक्चर, अगर लॉ बनाने से कुछ काम हो गया होता तो फिर तो उसमें जो है ये सॉल्यूशन हो चुका होता। लॉ से नहीं होता। सोसाइटी होती है तो सोसाइटी में लॉ होता है, और सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लॉ बनाया जाता है। आफ्टर ऑल, लॉ इज व्हाट? लॉ इज अ काइंड ऑफ द कॉमन सेंस in the form of the legislation, in the form of the judicial verdict, or in the form of the custom, in order to regulate the and control the human conduct in a state. ये तो होता है लॉ अपने आप में। तो यहाँ पे सोशल एटीट्यूड को भी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इन सबको जो है तो जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, जब तक विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो जाता, तब तक चेंज नहीं आने वाला। मैं लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आई विल अलाउ द क्वेश्चंस टू बी टेकन। मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा। द रीजन बिकॉज आई एम यूजिंग द मोबाइल, माय लैपटॉप इज हैज सम स्नैग, उस वजह से। आप मुझे बाद में बताना कि आपके क्वेश्चंस क्या है, तो आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। एक प्रॉब्लम मैं आपको और बताता हूँ। जो लॉज बने हैं आज के टाइम, जो लॉज काम कर रहे हैं, इवन द सेक्शन 63, 64, 65, 67 जो आपके भारतीय न्याय संहिता में है, इन्हें बनाने वाले लोग कौन है? हु आर दे? किन्होंने इसको बनाया? आर दे मेड बाय द विमेन और आर दे मेड बाय द मैन? अभी आपकी लोकसभा में लेडीज कितनी है? हाउ मेनी लेडीज आर देयर? मेरे ख्याल से 70-80 से ज्यादा नहीं है। 543 इज द कैपेसिटी, और लेडीज कितनी चुन के आई है वहां पे? मेरे ख्याल से 70-80 से ज्यादा नहीं है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। तो 543 में से अगर 80 लेडीज भी है, तो उनका मेजोरिटी कहां से आया? तो भारतीय न्याय संहिता कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। उनमें लेडीज, तो जो लॉ बने हैं वो विमेन के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं, वो मैन के अकॉर्डिंग बने हैं, है ना। इन लॉ में मेल डोमिनेशन नजर आता है। ऑल द आइडियोलॉजीज इन दीज लॉज, व्हाट वी कॉल द रैप लॉ, और व्हाट वी कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट वी कॉल द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और व्हाटएवर द वर्ल्ड के ज्यादातर लॉज मेल के अकॉर्डिंग बने हैं, यानी मैन के अकॉर्डिंग बने हैं, विमेन के अकॉर्डिंग नहीं बने। और ऐसे में जो विमेन का जो साइकोलॉजी उस लॉ में आना चाहिए, वो तो आया ही नहीं है। वो तो आया ही नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ की प्रोटेक्टिव अप्रोच चल रही है कि मैन इज अ पावरफुल, तो वो जो है डोमिनेट करेगा, तो उसको रोका जाए। ये अप्रोच चल रही है, बजाय इसके कि विमेन को इनेबल बनाया जाए कि वो खुद ही इसको रोक कर रख दे। आप इस चीज को नोटिस करें, अगर इससे बजाय इसके कि विमेन को ही डोमिनेट बना दिया जाए कि वो जो है मैन को रोक दे, आप अभी भी कह रहे हैं कि मैन के कंडक्ट को रोकना है, सो दैट द जो वीक विमेन है उसके ऊपर वो जो है ये काम ना कर पाए। तो दिस अप्रोच विल नॉट प्रोवाइड द फुल फ्लैश सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। अप्रोच हमें चेंज करने की जरूरत है। जैसे अमेरिका में एम्पावर कर दिया गया विमेन को, हॉलैंड में एम्पावर कर दिया गया, वहां पे रैप के केसेस बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, या आते ही नहीं है। या एक तरीका ये सऊदी अरेबिया वगैरह की तरह आप जो है यहाँ पे जो है लॉ बना लीजिए कि छोटे से ऑफेंस के लिए बड़ा सा पनिशमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, तो भी ये चीज कंट्रोल में आ जाएगी, या आ जाती है। ऐसा जो है देखने में आया है। इंडिया में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, डेट द टाइम विल आंसर। लेकिन यहां पर ये है, तो जितने लॉज बने हुए हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के और कंट्रीज के अंदर,
ज्यादातर लॉज के अंदर जो है मेल डोमिनेशन नजर आता है, मेल इंटेंशन नजर आती है, फीमेल इंटेंशन नजर नहीं आती है। अब एक नई तरह की जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्टिक जुरिस्प्रूडेंस। और जहां पे लेडीज ये डिमांड करती हैं कि लॉ जो बनाया जाए तो हमसे भी राय ली जाए, हमसे भी पूछा जाए कि लॉ कैसा बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से बना देते हो और वो फिर अल्टीमेटली सूटेबल हमारे अकॉर्डिंग होता नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी हैं इसके अंदर। अभी मैंने एक क्योंकि जितना टाइम मेरे पास है उसके हिसाब से मैंने आपसे कम डिस्कस किया है। सो दीज आर माय व्यूज एंड दीज आर द व्यूज व्हिच आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। जो मैंने आपको डेटा वगैरह दिया है ये ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप इनको चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, अच्छा लगा।